Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine and enjoying Ramzan. This is the sixth session of the chapter that is biotechnology. We have already started with the chapter biotechnology, and in this chapter, we have completed the introductory part, that is the basic of biotechnology and the different tools. And in last lecture I gave you the few advantages of biotechnology. Now today we will continue the same part, that is the application of biotechnology we were dealing. We have seen healthcare biotechnology last time. What are the different types and how we can utilize it for the welfare of mankind. We have also seen the production of vaccines by using rDNA technology. We have seen the example of insulin in this particular category. Then we have seen the role of biotechnology in agriculture, that is how we can use it in agriculture. We have seen the example as tissue culture. Now today we are going to see that is the use of biotechnology in gene therapy. Now, gene therapy is the treatment of disease by replacing, altering, or supplementing a gene that is absent or abnormal and whose absence or abnormality is responsible for the disease. As you all are aware about the gene, that is, genes are the functional segments of DNA. In our body, 23 pairs of genes are there, and every pair is responsible for one or the other characteristics of our body. A gene is a stretch of DNA required to make a functional product, such as part of all of a protein. So during gene therapy, the DNA that codes for specific gene is delivered to individual cell in the body. Now if we will talk about the genes, so all the diseases whatever we are having in our body, so it is also responsible for some genetic factor. All other heredity material will get transferred with the help of genes only. You are aware about this fact. Now the genetic factor can be wholly or partially responsible for the diseases. Say for example, disorders like cystic fibrosis or hemophilia or muscular dystrophy, or some change in some genetic pattern, so it may result in some kind of genetic problem. So in other conditions such as high cholesterol and high blood pressure, genetic and environmental factors, they may interact to cause diseases. So we can say that there are more than 5000 different human genetic diseases known to be caused by a single gene defect. We can take it here example as sickle cell anemia or thalassemia or Tay Sachs disease or cystic fibrosis. We may take example of Huntington's chorea or hemophilia, etc., or albinism also we can take. So these are the different types of diseases we can say that is called as genetic disorder. Now to overcome such kind of disease, we may take the help of gene therapy. It means by replacing or by replacing the defective gene with the healthy gene, we may cure such kind of problems. सो इस तरीके से हम लोग जीन थेरेपी का इस्तेमाल करके जो ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, और दे में पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विद द हेल्प ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, तो ऐसे डिजीज़ को हम लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी. As I said, we can use this gene therapy in many ways, like we can replace the missing or defective gene. We may deliver gene that speeds the destruction of cancer cell. In case of cancer, we can do this. We can supply that cause cancer. We can supply that healthy gene, or we may remove the gene that may cause cancer cells, and we may revert back to normal cell. We may deliver bacterial or viral gene as a form of vaccination. Then we can deliver DNA to antigen expression and generation of immune response. We may supply the gene for impairing viral replication. We may provide genes that promote or impede the growth of new tissue, and we may deliver genes that stimulate the healing of damaged tissue. तो इस तरीके से हेल्दी जीन जो है वो बॉडी में डिलीवर करके, या हम लोग जो फॉल्टी जीन है उसको रिप्लेस करके, और सम एंटीजन या उसको जो है वो एक नया इम्यून रिस्पॉन्स के तौर पर हम लोग जीन इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी. सो बाय दिस मेथड वी मे ट्राई टू क्योर
द जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि अब तक जो है वो एक इम्पॉसिबल लगता था ट्रीटमेंट जेनेटिक डिसऑर्डर का, बट विद द हेल्प ऑफ एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ पॉसिबल नाउ. वी कैन टेक वायरस वेक्टर एंड इन दैट हेल्दी जीन हम लोग इंसर्ट करके उसको हम लोग ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करके वहाँ पे जो भी उसका डिफेक्ट है बॉडी का उसको हम लोग क्योर कर सकते हैं. इस तरीके से वट एवर द जेनेटिक डिसऑर्डर द पर्सन इज सफरिंग उसको हम लोग क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ biotechnology. Now if we will talk about the type of gene therapy, that is two type of gene therapy, that is germline gene therapy and somatic cell gene therapy. Now if we will talk about germline gene therapy, it involves the permanent transfer of the gene to the sperm or egg cells. Gene therapy using germline cells results in permanent changes that are passed down to subsequent generation. Germline therapy is not permitted in any country on the basis that it is unethical. एक बार हम लोगों ने अगर जर्मलाइन जीन थेरेपी का इस्तेमाल कर लिया तो वो बॉडी में परमानेंट हो जाता है एंड इट मे ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. यानी ऐसा नहीं कि उस पर्टिकुलर जनरेशन तक वो चीज़ जो है वो लिमिटेड रहेगी, बल्कि आगे की भी जनरेशन में वो चीज़ जो एक मरतबा बॉडी में जर्मलाइन जीन थेरेपी का अगर हम लोग ने ट्रीटमेंट कर दिया तो वो परमानेंट बॉडी में वो रह जाती है एंड उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम काइंड ऑफ चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी. It results in permanent changes, potential for offering a permanent therapeutic effect for all who inherit the target gene, possibility of eliminating some diseases from a पर्टिकुलर फैमिली. ये इसका इस्तेमाल करके हम लोग कोई फॉर एग्जांपल एक जीन जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको रिमूव करने के लिए भी एक पर्टिकुलर फैमिली से हम लोग ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इट ऑल्सो रेजेस कंट्रोवर्सी that though it is highly effective in counteracting the genetic disorders, it is not encouraged for application in human beings due to a variety of technical and ethical reasons. Some reason may be like people are thinking that it is like playing with the God. Means once God has built our body and by default something happen in our body genetically, if something happen wrong, so it means like we are forcing that natural power to change the things whatever has been provided earlier. तो इस तरीके से जो है ये कुछ एथिकल एस्पेक्ट्स के बेसिस पे भी ये चीज़ जो है वो ह्यूमन बींग्स में उतनी प्रैक्टिकल नहीं है. अदरवाइज इन एनिमल्स एंड अदर काइंड ऑफ स्पीशीज़ दिस थेरेपी इज़ वेरी नाइसली वर्किंग. सो ड्यू टू सम टेक्निकल और एथिकल रीजंस ह्यूमन बींग्स में इतना उसको जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, वी कैन से, बिकॉज जो इफ़ेक्ट्स होंगे एक मरतबा बॉडी में इनकरेज हो जाएंगे वो ट्रांसफ़र होते रहेंगे जनरेशन टू जनरेशन. तो मे बी इस वजह से जो है वो इसको ह्यूमन बींग्स के ऊपर उतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं किया जाता. नाउ नेक्स्ट टाइप है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी. नाउ हियर इन दिस it ideally involves the transfer of genes to the affected cells. Somatic cell therapy is viewed as a more conservative, safer approach because it affects only the targeted cells in the patient and is not passed on to the future generation. जैसा कि एक ड्रॉबैक हमने अभी देखा जर्मलाइन जीन थेरेपी का कि जो एक मरतबा इफेक्ट हो गया बॉडी में वो कंटिन्यू ट्रांसफ़र होता रहता है फ्रॉम फर्दर फ्यूचर जनरेशन. तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता. तो ये जो सोमैटिक जीन थेरेपी है इट अफेक्ट्स ओनली द टारगेटेड सेल इन द पेशेंट्स एंड ये उसके बाद जो है वो फ्यूचर जनरेशन में पास नहीं होती. वेरी शॉर्ट लिव बिकॉज द सेल्स ऑफ most of the tissues ultimately die and are replaced by new cells. ये तो हमारी बॉडी का एक सिस्टम है कि सेल्स का जो है वो डिवीजन एंड रिडिवीजन कंटिन्यू होता रहता है. तो जो भी टारगेटेड जीन था उसको एक बार जो है वो ट्रीट किया गया एंड उसके बाद फिर वो चीज़ क्योर हो जाती है एंड उसके बाद जो है वो उसी जनरेशन तक वो चीज़ रहती है, अगली जनरेशन में वो ट्रांसफॉर्म नहीं होती है. ट्रांसपोर्टिंग द जीन्स टू द टारगेट सेल्स और टिश्यू इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक. यहाँ पे ऐसा कोई मतलब इशू नहीं होता. Appropriate and acceptable for many disorders including cystic fibrosis, muscular dystrophy, cancer, certain infection diseases. अभी जो हम लोगों ने डिजीज़ देखा जेनेटिक डिसऑर्डर डिस्कस करते वक्त, तो उस तरीके के सारे डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि सोमैटिक जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है. एज वी कैन से हियर कि जो हम लोग एक डिफरेंस बिटवीन टाइप में हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जर्मलाइन और सोमैटिक का जो है वो यहाँ पे किस तरीके से जीन थेरेपी में उसको इस्तेमाल किया जाता
जाता है, यानी कि जर्म लाइन में ऑल सेल टारगेटेड होते हैं, जबकि यहाँ पे जो है वो सिर्फ जो सोमैटिक सेल होता है बॉडी का उस पर टारगेट किया जाता है। यहाँ पे जो है वो पूरी की पूरी जर्म सेल्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट होता है उसी के ऊपर काम किया जाता है, उसके बाद जैसे ही टिश्यू रीडिवाइड होने लगते हैं वहाँ से वो चीज़ जो है उसका इफेक्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। और हम लोग बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे सोमैटिक सेल में सोमैटिक जीन थेरेपी में सोमैटिक सेल्स पे क्या काम किया जाता है, जबकि यहाँ पे जो है वो इट में गेट ट्रांसफर टू द जर्म सेल्स। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं सोमैटिक सेल थेरेपी का, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बोन मैरो सेल्स, बोन सेल्स, स्किन सेल्स एक्सेट्रा, जो कि परमानेंट एरियाज़ हैं। एंड यहाँ पे जो है एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि जीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एग एंड स्पर्म, जो कि लिमिटेड उस जनरेशन तक ही वो लिमिट होती है। देन हियर वी कैन से इट विल नॉट गेट इनहेरिटेड लेटर इनटू लेटर जनरेशन। हम लोग सोमैटिक सेल की बात कर रहे हैं कि वो दोबारा जो है वो दूसरी जनरेशन में इनहेरिट नहीं हो सकता, बट जर्म लाइन जो है वो इट में हेरिटेबल एंड पास टू दी later generations. Then also we can say that at present all researchers directed to correct genetic defects in somatic cell। यही एक बेहतर तरीका है जिससे जो है वो सारे डिसऑर्डर्स ट्रीट किए जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया आपको, जर्म लाइन सेल्स जो है वो सम एथिकल और टेक्निकल रीजंस की वजह से इट इज़ नॉट बीइंग अटेम्प्टेड एट प्रेजेंट। सो हियर लाइक दिस वी कैन से कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्योर करने के लिए सोमैटिक जीन थेरेपी का इस्तेमाल बहुत सक्सेसफुली किया जाता है एज़ कम्पेयर टू जर्म लाइन जीन थेरेपी, बिकॉज इट इज़ सेफ एंड इट मे नॉट गेट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इस तरीके से RDNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सक्सेसफुली जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्योर किया जा रहा है एट प्रेजेंट। Now next we will move to the next application of biotechnology, that is to make genetically modified crop, or we can say that is GM crops. So let's see what are these GM crops and how it is utilized. Now if we will talk about GM crops, it is nothing but the genetically modified crops। मैं इससे पहले भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको GM crop के बारे में दे चुकी हूँ। तो it was get first introduced in the year 1996 and the plant have became more, we can say it is a important component for food supply। हम लोग क्योंकि जो भी इंडिया की बढ़ती हुई आबादी है उस आबादी को उसके जो बेसिक नीड्स हैं फूड से रिलेटेड उसको जो है वो फुलफ़िल करने के लिए जो भी टेक्निक्स चल रही थी वो सफिशिएंट नहीं थी। तो दैट इज़ द रीज़न साइंटिस्ट हैव थॉट सम मोर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसीलिए जो है वो GM क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसे जो प्लांट बनाए गए जिसके अंदर जो है वो अगर बैक्टीरियल जीन को इंसर्ट किया जाए तो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोटीन वहाँ पे क्रिएट किया गया, जैसे कि BT टॉक्सिन जिसको बोलते हैं। सो दिस टॉक्सिन जो है वो इट वाज हार्मलेस टॉक्सिन वी कैन से। Now here BT stands for Bacillus thuringiensis. Now this toxin is harmless to human and most other animals, but this enzyme in the digestive system of the insect कन्वर्ट BT टू अ फॉर्म दैट किल्स द इंसेक्ट। तो ये किस तरीके से काम करता है हम लोग और आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है वो BT टॉक्सिन्स इंसेक्ट को के ऊपर काम करते हैं, कैसे क्रॉप जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है इंसेक्ट या पेस्ट से। सो प्लांट विद द BT जीन डू नॉट हैव टू बी स्प्रेड विद पेस्टिसाइड एंड प्रोड्यूस्ड हाई यील्ड ऑफ क्रॉप। यानी कि ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनके ऊपर हद से ज़्यादा या बिल्कुल भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक इनबिल्ट उसके अंदर सिस्टम आ जाता है जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली वो क्रॉप जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंस या इंसेक्ट रेजिस्टेंस बन जाती हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग एक एग्जांपल है कि BT कॉर्न डेवलप किया जाता है, बिकॉज BT का जब इंसर्ट किया जाएगा कॉर्न के अंदर तो वहाँ पे जो यूरोपियन कंट्री जो सफ़र कर रहे थे, कॉर्न बोरर एक मेजर पेस्ट था वहाँ पे। तो जब BT जीन इंसर्ट किया गया एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड उसमें प्लांट के अंदर प्रोड्यूस्ड हो गया। तो इस तरीके से जब जो प्लांट बना BT कॉर्न तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐसा मतलब BT टॉक्सिन क्रिएट हो गए जो इंसेक्ट जो था कॉर्न बोरर उसके बॉडी के ऊपर इंजेस्ट करके उसके बॉडी के ऊपर असर करके ऑटोमेटिकली वो प्लांट जो है वो सेफ होता गया फ्रॉम सच काइंड ऑफ कॉर्न बोरर। तो इस तरीके से हम लोग नेचुरली वर्किंग इंसेक्टिसाइड प्लांट हम लोग बना सकते हैं। और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में पहली वैरायटी आ जाती है ट्रांसजेनिक प्लांट्स की। ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर जो है वो इनबिल्ट कुछ ऐसी क्वालिटीज़ ऐड की जाती है बाय चेंजिंग द DNA सीक्वेंस कि वो ऑटोमेटिकली पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं। नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर दीज ट्रांसजेनिक प्लांट्स, दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ DNA यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट RDNA technology. Now here aim is to introduce a new trait to the plant
द इंसर्टेड सीक्वेंस इज नोइंग एज द ट्रांसजीन, जो भी जीन हम लोग वहाँ पे चेंज कर रहे हैं सीक्वेंस, वो ट्रांसजीन कहलाता है. द पर्पज ऑफ इंसर्टिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इन अ प्लांट so as to make it as useful as productive as possible. We can take an example. In food crops include resistance to certain pest diseases or environmental condition, reduction of spoilage, or resistance to chemical treatment like resistance to herbicide, or improving the nutrient profile of the crop. Example in non-food crop include production of pharmaceutical agents, biofuels, and other industrially useful goods, as well as for bioremediation. So like this we can use the transgenic plants for betterment of mankind. Now if we will talk about the advantage in plants, so it may increase and improve nutrient quality of the plant, it may give longer shelf life and less waste to the plant, it enhance the taste and quality of the plant, it reduced the maturation time. Now it may give high yield crop that is more efficient and best use of land, we can say. It may give high yielding crops and more efficient use, हम लोग लैंड का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. इट मे इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू डिजीज़ और इलनेस, प्लांट के अंदर ऑटोमेटिकली एक डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर हम लोग डेवलप कर सकते हैं. वी मे इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड ग्रोथ चैलेंजेस. वट एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, द नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, जिसको एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के ज़माने में, तो आज के टाइम पे, तो इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको फुलफ़िल करने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन सब्स्टिट्यूट हो सकता है वी में से. फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस वाज टोबैको. More than 60 transgenic dicot plants and several monocot plants like maize, oats, rice, wheat are known. Tomato, soybean, potato, sugar beet, grapes, brinjal, cotton are other transgenic plants. Transgenic plants are being looked up as bioreactors for molecular farming, that is for production of novel drugs like interferon, edible vaccines, antibodies, amino acids, immunotherapeutic drugs, etc. So like this, by using RDNA technology we may create the transgenic plant. सिंपल प्रोसीजर जो RDNA टेक्नोलॉजी का मैंने आपके साथ अब तक जो डिस्कस किया है कि किस तरीके से उसको जो है वो DNA को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, देन उसकी क्लोनिंग की जाती है, देन उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, सेल कल्चर किया जाता है, देन उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो इस तरीके से जो है वो हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट क्रिएट कर सकते हैं एंड वी मे सेव इट for the betterment of mankind. Now let's talk about the advantage of genetically modified food plant, how we can use it to enhance the productivity, to give better shelf life, as well as how we can use it in the better way for the betterment of mankind. So there are several advantage of the transgenic plant. सबसे पहले तो हम लोग जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू प्लांट की इन्हांस कर सकते हैं. लाइक सम GM सोयाबीन है, इट मे इम्प्रूव ऑयल प्रोफाइल्स फॉर प्रोसेसिंग और हेल्दियर ईटिंग. देन कैमेलिना सटाइवा, दैट इज़ ऑल्सो अ ऑयल प्लांट बीन मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस प्लांट्स दैट एक्यूमुलेट हाई लेवल्स ऑफ ऑयल सिमिलर टू फिश ऑयल. ये सारे से हम लोग जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं. देन विटामिन एनरिचमेंट हम लोग उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं. से आई हैव डिस्कस विथ यू पीपल लाइक गोल्डन राइस, तो उसका जो गोल्डन कलर है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द विटामिन ए. तो इस तरीके से जो है वो हम लोग गोल्डन राइस डेवलप कर सकते हैं बाय द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI के थ्रू ये चीज़ आई है. इट प्रोवाइड ग्रेटर अमाउंट ऑफ विटामिन ए टारगेटेड एज रिड्यूसिंग विटामिन ए डेफिशिएंसी. तो जो कंट्रीज़ विटामिन ए की डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं, उस कंट्रीज़ के लिए ये गोल्डन राइस एक बहुत ही अच्छा वी कैन से दैट एक कंप्लीट मील हो जाता है, जिसमें सिंपली व्हेन वी विल ईट दैट राइट, सो पर्टिकुलरली हमारी जो राइस, सो पर्टिकुलरली हमारी बॉडी की जो भी विटामिन ए डेफिशिएंसी रहती है वो ठीक हो जाती है. Then next we can say it is also useful for toxin reduction. That is, a genetically modified plant may develop the lower cyanogen glucoside and it enhance the protein and other nutrients. That is why it is called as बायोकसावा. सो इस तरीके से टॉक्सिन जो डेवलप होते हैं सॉइल के थ्रू वो भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं GM क्रॉप के थ्रू. देन वी मे यूज़ इट एज अ स्ट्रेस रेजिस्टेंस. तो एक एग्जांपल यहाँ पे कि 2011 में मॉन्सेंटोज ड्राउट ग्रेज मेज became the first drought resistant GM crop to
रिसीव यूएस मार्केटिंग अप्रूवल। तो जो भी ऑटोमेटिक या नेचुरल ड्राउट रेजिस्टेंस हम लोग डेवलप कर सकते हैं प्लांट के अंदर, जो भी ड्राउट की सिचुएशन को प्लांट फील करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्लांट्स के लिए ड्राउट की सिचुएशन होती है, तो उस सिचुएशन को ओवरकम कर सकता है एक जीएम प्लांट। यानी ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐसे जीन्स डेवलप किए जाते हैं, डीएनए सीक्वेंस उसका ऐसा डेवलप किया जाता है कि ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये कैपेसिटी डेवलप हो जाती है कि वो ड्राउट को बेयर कर सके और ऐसे इसमें विथस्टैंड कर सके। नेक्स्ट एक्सप्लिकेशन जीएम क्रॉप का ये रहेगा कि उससे हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बना सकते हैं और बहुत अच्छे से उसको हम लोग जो है वो जीन इंसर्ट कर सकते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन उसके अंदर ऐड करके। से यहाँ पे एग्जांपल पोटैटो प्लांट का एक दिया हुआ है। सो हम लोग इस तरीके से बहुत सारे प्लांट क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐसी क्वालिटी बिल्ड हो जाती है जिसके थ्रू विदाउट स्प्रेइंग द इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड प्लांट के अंदर ही ऐसी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है कि ऑटोमेटिकली वो पेस्ट को रेजिस्ट करता है। किस तरीके से पेस्ट या इंसेक्ट की बॉडी पे ये असर करते हैं टॉक्सिन्स, दैट वी विल सी। सो बट जस्ट यू टेक इट एज एग्जांपल, लाइक वी कैन क्रिएट द पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप। तो इसी का सीक्वेंस जो है वो बीटी की सीरीज है। से ऑलरेडी वी हैव सीन दैट बीटी कॉटन इज ऑल्सो अ प्लांट दैट वी कैन से अ ट्रांसजेनिक प्लांट जिसमें पेस्ट रेजिस्टेंस होता है। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज बीटी कॉर्न। तो ये बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, ये सारे ऐसे सीक्वेंस है जो कि बैसिलस thuringiensis एक्चुअली यहाँ पे बीटी स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो बीटी ब्रिंजल भी इसी तरह से डेवलप हुआ है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली पेस्ट रेजिस्टेंस क्वालिटी डेवलप हो जाती है। तो ये जो बीटी क्रॉप्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इसमें है, तो ये कैसे काम करता है। सो बीटी जीन्स इसको ट्रांसफ़र किया जाता है इन द बैसिलस इनटू द कॉर्न। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कॉर्न की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो बीटी क्रॉप है, ये अगर इसके अंदर बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाएगा तो वहाँ पे एक जीन डेवलप होता है दैट इज़ कॉल्ड एज क्राई जीन। से फॉर एग्जांपल यूरोपियन कॉर बोरर, यहाँ पे एक बहुत मैंने अभी बताया कि यूरोपियन कॉर बोरर एक बहुत हेक्टिक वहाँ पे हो जाता था कॉर्न के प्लांट के लिए, तो उसको ट्रीट करने के लिए टेक्निक वहाँ पे डेवलप की गई थी। तो जब टॉक्सिन्स इंसर्ट किए गए प्लांट के अंदर, तो व्हेन द कॉर्न बोरर केम टू फीड ऑन द कॉर्न प्लांट, सो इट विल इंजेस्ट द प्रोटीन एनकोडेड बाय द बीटी जीन। तो जो भी उसके अंदर हम लोगों ने बीटी टॉक्सिन इंसर्ट किया है वो इंसेक्ट की बॉडी में जाता है। से फॉर एग्जांपल क्राई जीन, यहाँ पे एक जीन उसका नाम रखा गया, एंड दैट विल गेट हेल्प आउट टू किल द कॉर्न बोरर ऑन दैट पर्टिकुलर प्लांट। अब ये होगा कि जो बीटी प्रोटीन इंसर्ट हुआ है इंसेक्ट की बॉडी में, इट विल गेट पेनिट्रेट एंड कोलैप्स द cell lining and the gut of the insect, and like this the insect may die। तो एक्चुअली होता क्या है, इनसाइड द गट ऑफ द इंसेक्ट वहाँ पे क्राई जीन डेवलप हो जाता है एंड बीटी टॉक्सिन वो वहाँ पे जो है वो सेक्रीट हो जाती है बॉडी के अंदर, और इस तरीके से जो है वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड उसकी इनर लाइनिंग का रिसेप्टर जो होता है गट का, यू कैन से दैट इज़ इन ब्लू कलर यहाँ पे जो दिखाया गया है, दैट इज़ द इनएक्टिव, एंड जब वो ग्रीन कलर में एक्टिव हो जाता है तो इस तरीके से एक्टिवेटेड प्रोटीन इट में फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, एंड दैट अ बोर, ये जो कॉर्न का बोरर इंसेक्ट है, दे में कॉज दैट फीलिंग लाइक स्टारवेशन, यानी उसको ऐसा फील होता है कि उसका पेट भरा हुआ है। तो इस तरीके से जो है वो इंसेक्ट ऑटोमेटिकली डाई बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, बिकॉज ये ऐसे टॉक्सिन्स जो है वो ऐसे प्रोटीन सेक्रीट कर देते हैं बॉडी में उसके, जिसकी वजह से उसकी हंगर जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, एंड इसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो इंसेक्ट जो है वो मर जाता है, एंड प्लांट विल गेट सेफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट। So by using this phenomena, scientists are creating the transgenic plant, and by this method they are creating the self-resistance power in the plant, so that without spraying the pesticide or fungicide or other kind of insecticide chemicals, plant automatically generate in the body some substances that may kill the insect naturally. So like that we may get the transgenic plant by using such technology. Now next use, or we can say the next advancement is biofortification. It is nothing but adding nutritional quality inside the plant, that is called as biofortification. Now in this sequence we have already discussed about
golden rice, that how we can create a golden rice or how it is useful. As I've already said, that golden color is because of the presence of vitamin A inside the plant. So here we can say it is a genetically modified plant that may give a proper supplement for the for the supplement of the vitamin A, or we may say that for curing the deficiency of vitamin A, it is very helpful to use golden rice. तो इस तरीके से GM क्रॉप को प्रोड्यूस करते वक्त हम लोग उसके अंदर जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल मेनी प्लांट्स आर देयर जिसके अंदर हम लोग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, से फॉर एग्जांपल प्रोटीन, आयरन, जिंक. कभी बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि बहुत से लोगों में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, जिंक की डेफिशिएंसी होती है और आयरन डेफिशिएंसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. तो सिंपली ऐसा है कि हम लोग स्टेपल फूड जो हम लोग खा रहे हैं उसके अंदर ही अगर ये सारी चीज़ें इन अ प्लेंटी ऑफ अमाउंट अगर अवेलेबल हो तो दैट विल बी मोर यूज़फुल, स्पेशली फॉर पुअर एंड नीडी पीपल जो कि ज़्यादा जो है वो इन सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते. जो भी बेसिक सोर्सेस होते हैं, से फॉर एग्जांपल जिंक के, आयरन के जो पर्टिकुलर सोर्सेज हैं, उसको अगर पुअर एंड नीडी पीपल इफ़ दे आर अनेबल टू अफोर्ड, तो उस कंडीशन में सिंपली राइस के अंदर या मस्टर्ड के अंदर या जो भी बेसिक क्रॉप्स है, वी कैन से दैट सीरियल क्रॉप, तो उसके अंदर अगर ये न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाएँ तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल. तो इसीलिए जो है वो बायो फोर्टिफिकेशन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं प्लांट के अंदर, so that poor and needy people may also get the same kind of nutrients whatever is available in the food that is rich in that particular source. Iron deficiency is also a serious nutritional problem affecting an estimated 30% of the world population. So for production of transgenic crops that will produce food rich in iron, an iron storage protein that is called as ferritin is targeted. Ferritin is found in many animals, plants and bacteria. These genes for ferritin protein isolated from soybean and phaseolus have been transferred to rice. So like that we can create the rice that will give a solution for iron deficiency. So like that we may create the transgenic plant for several substances like provitamin A, vitamin E, flavonoids, fructanes, iron. So like that जो भी उसके potential benefits है like antioxidant और low calories और low iron fortification. So इस तरीके से हम लोग different crops जैसे कि राइस है, कैनोला है, टोमेटो है, शुगर बीट, इस तरीके से अलग अलग क्रॉप्स हम लोग उसके अंदर ट्रांसजीन्स इंसर्ट करके, यहाँ पे एक लिस्ट है ट्रांसजीन्स की, तो इस तरीके से ये ट्रांसजीन्स इंसर्ट करके हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट क्रिएट कर सकते हैं for the purpose of biofortification and we may increase the nutritional quality of the fruits, vegetables, supplements and other cereal crops. तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स का और GM क्रॉप्स का इस्तेमाल करके बहुत ही कम रेट में और चीपर रेट में हम लोग जो है वो पुअर एंड नीडी पीपल को और द वन दोज हु कांट अफोर्ड हम लोग वहाँ पे जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं. Some more advantage of GM crops are genetically engineered herbicide tolerant plant are developed as in maize, wheat and many other monocot plants. Genetically engineered disease resistance plant like against bacterial and viral pathogens are also developed in crop plants like tomato, potato and tobacco. Plants deficient in amino acid like methionine, lysine and tryptophan are genetically engineered by introducing genes from other sources so as to make the seeds protein rich. Here we can say the example leguminous plants like pulses, maize, etc. Similarly, genetically engineered plants tolerant to antibiotic stress such as high temperature, water, cold, etc. are also developed. So like that by using the GM crop or the transgenic plant we may create such kind of miraculous work in the field of agriculture as well as in the field of genetics. So about the genetic disorder I forget to tell you about few diseases जो हम लोग जो है वो वहाँ पे चेक कर सकते हैं with the help of a genetic disorder like hemophilia and phenylketonuria, cystic fibrosis, sickle cell anemia. तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है.
like sickle cell anemia and hemophilia. But phenylketonuria, I would like to add that phenylketonuria is a type of a genetic disorder where the amino acid content of the body will get increased and it is a birth defect we can say. So जिसकी वजह से बॉडी में अमीनो एसिड का कंटामिनेशन बढ़ जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट बॉडी की ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है एंड द पर्सन मे नॉट लिव लॉन्गर वी कैन से. तो बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ सोमैटिक जर्मलाइन ट्रीटमेंट यहाँ पे इसको क्योर किया जा सकता है. सोमैटिक जीन थेरेपी का इस्तेमाल करके यहाँ पे इस डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है. सो दैट इज़ अबाउट द phenylketonuria. So like that here are the few applications of the genetically modified plant that we have seen today. Still few are there that we will discuss in next class because ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है. तो अभी आपको जो है वो इसको रिवाइज़ करना है घर पे और एक और मरतबा इसको अच्छे से आप लोग रीड करो, गो थ्रू द कंटेंट वन मोर टाइम. सिंपल सी चीज़ें हैं. सिंपली अगर आप उसको एक और मरतबा अच्छे से रीड करोगे थरोली थ्रू द PDF तो आपको जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. सो प्लीज़ रीड दैट कंटेंट. टेक केयर. अस्सलाम.